Morning children, welcome to class 2 computers. Children, this is our computer book IT Planet My Bits and Bytes computer series 2. Children, in our previous video we were doing chapter 7, that is notepad and calculator. So children, we have studied about notepad and calculator. Now I hope you all must have understood how to open notepad and work on it, and also you must have understood how to start calculator and do calculations. So children, today we are going to do self evaluation, as we have completed the chapter and you have understood. I hope you have understood everything in the chapter. So there are few points which are given under the topic self evaluation. Let us check ourselves how much we have learnt in the chapter. And children, if you agree with the statements given here, we will put a tick in the column under agree, or if you don't agree with the statement, you will put tick in the column under, in the box under disagree. So children, यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जो कि हमने चैप्टर में पढ़े हैं और समझे हैं, उसी के बेसिस पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. अगर हम स्टेटमेंट्स को एग्री करते हैं कि दैट वी हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर फ्रॉम दिस पॉइंट फ्रॉम द चैप्टर, सो यू विल एग्री, अदरवाइज यू विल पुट अ टिक अंडर डिसएग्री. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So children, our today's topic is self-evaluation. After reading the chapter, I know these points. Children, I know that notepad is used to type in computer. So children, as we know, as we have studied in the chapter, notepad is a प्रोग्राम और टेक्स्ट एडिटर. हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं और इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं. तो हम इसे एडिट कर सकते हैं. तो ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम जो भी करते हैं उसको टाइम टू टाइम हम एडिट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको टेक्स्ट एडिटर कहते हैं. टेक्स्ट का मतलब होता है एनी रिटन वर्क एंड विच कैन बी एडिटेड. तो इसीलिए ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसे हमें अगर थोड़ा कंप्यूटर ऑन ऑफ करना भी आता है तो हम कर सकते हैं. दैट इज़ वाई चिल्ड्रन, एज अ बिगनर वी आर स्टार्टिंग लर्निंग अबाउट राइटिंग टेक्स्ट in the computer with this notepad. So notepad is a program which is also known as text editor. So as it is a text editor, we use it for writing or typing in a computer. As we know children, type का मतलब होता है कंप्यूटर में लिखना. कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर में लिखते हैं तो हम उसे टाइप करना कहते हैं. तो from the first time point we have understood that after reading the chapter we know that notepad is used to type in computer. It is a program which is used to type in a computer. Now, so children, we agree with this point and we will put a tick in the box agree. Now, second point children, I know that we can enter text in notepad. Children, I know that we can enter text in notepad. So children, with the help of keyboard. Another point which we have understood from the chapter and from the previous chapter also children, that was keypad. पहले वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि जो कुछ भी हम लिखते हैं कंप्यूटर में वो हम कीपैड को यूज़ करके कीबोर्ड को यूज़ करके हम लिखते हैं. कीबोर्ड से ही हम अल्फ़ाबेट कीज़ को टाइप करते हैं, वो वहाँ पे उससे हम लिखते हैं. तो हम नोटपैड में लिखने के लिए कीबोर्ड का यूज़ करेंगे. तो इसीलिए जो भी टेक्स्ट हमको नोटपैड में एंटर करना है या लिखना है, टाइप करना है, दैट वी विल डू विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. सो सेकेंड पॉइंट इज आई हैव ऑल्सो अंडरस्टूड दैट वी कैन एंटर टेक्स्ट इन नोटपैड विद द हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड. सो चिल्ड्रन, वी एग्री विद सेकेंड पॉइंट ऑल्सो कि वॉट एवर वी राइट इन द नेक्स्ट नोटपैड इज रिटन विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. नोटपैड पे क्या, हम किसी भी प्रोग्राम में अगर हम कुछ भी लिखते हैं कंप्यूटर में और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, अगर उसको यूज़ करके उसमें भी हम कुछ लिखते हैं तो वी विल बी राइटिंग यूजिंग द कीपैड ओनली. हमें कीबोर्ड, हमने पिछले इससे पहले वाले चैप्टर में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में भी चिल्ड्रन वी हैड स्टडी कि जो भी चीज़ हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, we give any instructions to the computer, it is given with the help of keyboard. So whatever we write in the computer, we write using the notepad. In the computer or notepad is with the help of keyboard. Now, third point children, I know that we can type letters, words,
sentences, numbers, etc. in notepad. So children, नोटपैड में हम नंबर्स भी लिख सकते हैं, वर्ड्स भी लिख सकते हैं, लेटर्स भी लिख सकते हैं, सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं, हम उसमें कुछ भी लिख सकते हैं जो भी हम लिखना चाहते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट एंड ऑल दीज आर रिटन यूजिंग द कीबोर्ड. और ये सारे as we know all these things are given on the keyboard. Using the keyboard we can write all these things. All these means letter, words, sentences or number in the notepad. Now fourth point children, I know that calculator is used to perform calculations. Children, I know that calculator is used to perform कैलकुलेशंस. हमको ये भी पता है कि जो कैलकुलेटर होता है इसको यूज़ करके हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं. वी डू कैलकुलेशंस, एनी कैलकुलेशन, वेदर इट इज़ सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वी कैन डू दीज यूजिंग द कैलकुलेटर. तो कैलकुलेटर भी एक तरह का प्रोग्राम है. इट इज़ सेम एज नोटपैड एंड यूजिंग दिस कैलकुलेटर we can do calculation same as we do using the real calculator. जो रियल कैलकुलेटर हम अपने हाथ में लेकर के उससे अपने हाथ से बटन टाइप करके करते हैं, उसी तरह से देखने में भी ये ऐसा ही होता है जो कंप्यूटर में कैलकुलेटर होता है, और उसी तरह से हम इस कैलकुलेटर में भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, दीज आर द पॉइंट विच वी हैव स्टडीड एंड अंडरस्टूड फ्रॉम द चैप्टर एंड आई होप you all must have understood these points. So children, let us revise these points. First point is children, I know that notepad is used to type in computer. We very well know that notepad is a program which is used to type in कंप्यूटर. नोटपैड एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में कुछ भी लिख सकते हैं. मैंने आपको बताया भी था, आप नोट्स बना सकते हो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिख सकते हो. मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिख करके सेव करके भी दिखाया था कि किस तरह से आप नोटपैड खोल सकते हो और उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिख करके उसे सेव कर सकते हो. फिर वेन एवर यू वॉन्ट टू लर्न यू कैन ओपन एंड लर्न. फिर आई नो दैट वी कैन एंटर टेक्स्ट इन अ नोटपैड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. सो जो भी हम ये एंटर करते हैं या हम लिखते हैं वो हम कीबोर्ड के हेल्प से नोटपैड में एंटर करेंगे. देन थर्ड पॉइंट इज आई नो दैट वी कैन टाइप लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, नंबर्स एट्सेट्रा इन नोटपैड. सो हम लेटर्स भी नोटपैड में टाइप कर सकते हैं और वर्ड्स भी टाइप कर सकते हैं, सेंटेंसेस भी टाइप कर सकते हैं और नंबर्स भी टाइप कर सकते हैं. एंड ऑल दीज विल बी टाइप्ड यूजिंग द keyboard. I know that calculator is used to perform calculations. I know that calculator is used to perform calculations. हमको ये भी पता है कि जो कैलकुलेटर होता है इसको यूज़ करके हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं या कर सकते हैं. So children, these are the point which we have understood from the chapter, और I hope you all have understood these points in the chapter. Now इसके आगे हमारे पास है exercises. So children, ये है book exercises. These are the questions which are from the chapter. We have studied and understood the chapter and I hope we all must be able to you all must be able to reply these answers. तो चलिए मैं पढ़ती हूँ, आप कोशिश करना रिप्लाई करने की. So first question है children, A, tick the correct answer. Here we have 3 questions. यहाँ पे हमारे पास 3 questions है. हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसके नीचे 3 क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उनमें से एक आंसर जो सही है उसके नीचे उसके सामने टिक का निशान लगाएंगे. तो बच्चों, डैश प्रोग्राम इज यूज्ड टू टाइप इन द कंप्यूटर. सो चिल्ड्रन, जस्ट नाउ वी स्टडीड दैट नोटपैड इज अ प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू टाइप इन अ कंप्यूटर. तो लेट अस सर्च फॉर नोटपैड. सो हियर वी हैव 3 ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज कैलकुलेटर, second option B is notepad and third option C is none of these. So children, calculator is a program which is used to do the calculation. कैलकुलेटर एक प्रोग्राम है जिसको यूज़ करके हम कैलकुलेशंस करते हैं. उसके बाद नोटपैड इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ यूज्ड to write the text or type the text. And last answer is none of these. None of these का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं. लेकिन children, none of these is not the answer because notepad is a correct answer. None of these उस केस में आंसर होता है जबकि दोनों पहले A और B में से कोई भी आंसर सही नहीं होता है. तो यहाँ पे सही आंसर है कैलकुलेटर. So you will write here
सॉरी सही आंसर है नोटपैड, सो यू विल पुट अ टिक इन फ्रंट ऑफ नोटपैड, इसलिए आप नोटपैड के आगे सही का निशान लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे NOTE नोट PAD पैड, NOTE नोट PAD पैड. Dash program is used to type in the computer. Dash program is used to type in the computer. So dash की जगह आप notepad लिखेंगे. Notepad is a program which is used to type in a computer. Now children, second question है, in notepad the blinking line is known as, in notepad the blinking line is known as, जो नोटपैड है उसमें जो ब्लिंकिंग लाइन है इट इज़ नोन एज कर्सर, ब्लिंकिंग लाइन को हम कर्सर कहते हैं. अब जो कर्सर है चिल्ड्रन, एज आई हैव टोल्ड यू, देयर इज़ अ वर्टिकल, स्मॉल वर्टिकल लाइन विच कीप्स ऑन ब्लिंकिंग ऑन द स्क्रीन. मैंने आपको कीबोर्ड वाले चैप्टर में भी बताया था और भी एक दो चैप्टर में बताया था कि हमारे स्क्रीन पे हमेशा एक वर्टिकल, छोटी सी वर्टिकल लाइन ब्लिंक करती रहती है, उस लाइन को हम कहते हैं कर्सर. और इस कर्सर जो भी हम टाइप करते हैं उसको हम वो वहीं से लिखना शुरू होता है. तो यहाँ पे द आंसर इज कर्सर फर्स्ट, एंड हियर वी हैव 3 ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज टेक्स्ट एरिया. टेक्स्ट एरिया इज़ अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि टेक्स्ट एरिया का मतलब होता है नोटपैड में वो प्लेन एरिया जिस पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, जिस पे हम जो भी टाइप करते हैं वो लिखाता है, उसे हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं. उसके बाद बी वाले में वी हैव मीनू बार. मीनू बार का मतलब होता है वो बार जिस पे मीनू डिस्प्ले करता है, मीन्स फाइल है, व्यू है, एडिट है और हेल्प है, ये सारे मीनूज फॉर्मेट है, ये सारे मीनूज डिस्प्ले करते हैं, उसको मीनू बार कहते हैं. तो ये भी आंसर रॉन्ग है और कर्सर इज़ द राइट आंसर. इट इज़ अ स्मॉल लाइन विच कीप्स ऑन ब्लिंकिंग ऑन द स्क्रीन. तो इसे हम कहेंगे, यहाँ पे हम कर्सर के आगे सही का निशान लगाएंगे. उसके बाद चिल्ड्रन, डैश प्रोग्राम इज़ यूज टू डू कैलकुलेशन. सो चिल्ड्रन, एज वी नो, जो the program which is used to do calculation is calculator. So our first answer, that is calculator, is the correct answer. So here you will write, आप यहाँ पे लिखेंगे CALCULATOR, calculator. अब यहाँ पे आंसर इज कैलकुलेटर. सेकेंड आंसर इज नोटपैड. नोटपैड इज अ रॉन्ग आंसर चिल्ड्रन, क्योंकि एज वी नो नोटपैड इज़ नॉट यूज फॉर कैलकुलेशन. नोटपैड का यूज़ हम कैलकुलेशन के लिए नहीं करते हैं, बल्कि हम यहाँ पे टेक्स्ट को लिखने के लिए इसका यूज़ करते हैं, इसलिए नोटपैड इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर. और आंसर ए और बी दोनों भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि नोटपैड रॉन्ग आंसर है और कैलकुलेटर सही आंसर है. ए तो सही है, बी गलत है, इसलिए बोथ ए एंड बी उसी केस में आंसर हो सकता है जब बोथ ए एंड बी आर correct answer. Now children, so with this we have done this. Let us revise. First, dash program is used to type in the computer. Answer is notepad, so you will tick in front of notepad. In notepad the blinking line is known as cursor, so here you will tick in front of cursor. A dash program is used to do calculation, so you will click in front of calculator. Calculator program is used to do calculation. So children, this is question number A. Now let us start question number B. अब children, question number B में हमारे पास पहला question है, notepad is used to type letters. As we know children, there is a program which we have learnt about it which in the chapter, and this program is used to type letters, words and sentences. And this program, as we can see the clue also, N है, T है, P है, D है, इसका मतलब है ये है नोटपैड. तो हम यहाँ लिखेंगे NOTEPAD, नोटपैड. इसके बाद अगला क्वेश्चन है चिल्ड्रन, कैलकुलेटर इज़ यूज्ड टू डू कैलकुलेशन. जो कैलकुलेटर है उसको यूज़ करके हम कैलकुलेशंस करते हैं. सो हियर यू विल राइट CAL CAL CUQLATION, calculation. So calculator is a program which is used to do calculations. उसके बाद this oblique sign button is used
to do division. So you will write division, division on calculator. So this is fill in the blanks, children. Let us revise. Notepad is used to type letters, words and sentences. Calculator is used to do calculation, and the button which is shown here is used to do division on the calculator. So with this we have done question number B also. Now children, coming to the next question, that is true and false. So children, इतना तो हमने पिछले वीडियो में किया था. Now let us start today's exercise. अब आज की एक्सरसाइज है, write T for true and F for false statement. Write T for true and F for false statement. Notepad is used to draw pictures with a mouse. So children, a notepad is used to draw pictures with a mouse is a wrong statement, क्योंकि notepad से हम picture नहीं draw करते हैं बल्कि हम text type करते हैं. So this statement is wrong and you will write here F for false. आप यहाँ पे false लिखोगे. Notepad is used to type text, not draw pictures with mouse. So this statement is wrong. You will write F for false. You can type your name in notepad. आप notepad में अपना नाम भी type कर सकते हो. You can type your name in notepad. So children, as we know, we can type letters, sentences or words in notepad. So using the letters we can write our name also. This statement is true and you will write here T for true. You will write here T for true. Now you can do addition with a calculator. Children, of course we can do addition with a calculator. जैसा कि हमने पढ़ा है, कैलकुलेटर से हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते हैं. तो addition is one of the calculation and this also we can do. So you will write here T for true. अब इसके बाद calculator is used for doing calculation. This is also true. If you can do a addition, you can do any kind of calculation. So calculator is used for doing calculation is also true and you will write here true. So children, let us revise. Notepad is used to draw pictures with a mouse is wrong because notepad is not used for drawing picture. Notepad को use करके हम pictures नहीं draw करते बल्कि हम text type करते हैं या हम कुछ भी लिख सकते हैं. So first statement is false. Second statement, you can type your name in notepad. So children, for writing our name we need letters. We need letters of English alphabet, and this here in notepad we can write letters, words, sentences. So we can write our name also. So this is true and you will write T for true statement. Then you can do addition with a calculator. As we know children, we can do any kind of calculation in the using the calculator. So addition is also one of the calculation. You can do calculation also. आप calculation addition भी कर सकते हो. फिर calculator is used for doing calculations. Of course children, we can do calculation using the calculator. So fourth statement is also true. तो बच्चों, I hope you have understood. So let us come to question number D. अब question number D में we have some questions. So children, here is a question. Question number 1 is what is notepad? Answer the following question. What is notepad? So children, as we have studied in the chapter, notepad is a program which is used to type anything on the. So children, notepad is a program which is used to type in a computer. What is a notepad? In answer you will write notepad is a program which is used to write in a computer. So children, under this answer you will write notepad is a program which is used to write in a computer, and you can find this answer in page number 48 अंडर नोटपैड. नोटपैड टॉपिक के नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है नोटपैड इज़ अ क्विक एंड ईजी प्रोग्राम यूज्ड फॉर टाइपिंग इन कंप्यूटर. तो आप क्विक एंड ईजी नहीं लिखोगे, यू विल राइट नोटपैड इज़ अ प्रोग्राम यूज्ड फॉर टाइपिंग इन कंप्यूटर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन चिल्ड्रन, what is the use of a calculator? So children, similarly calculator is a program which is used to do
calculation. जिस तरह से notepad is a program which is used for writing text in a computer, which helps in writing words, sentences or numbers in a computer. Similarly, the calculator is used for doing calculation. Calculator को use करके हम calculations कर सकते हैं. So the calculator is used for doing calculations. तो आप इसके calculate दूसरे question में लिखेंगे what is the use of calculator. यहाँ पे आप लिखेंगे calculator is used for doing calculation. Then children, question number E. अब question number E is application based question. Children, application based question का मतलब है कि हम जो भी सीखते हैं चैप्टर में, वॉट एवर वी हैव लर्न फ्रॉम द चैप्टर, वी विल अप्लाई इन आर डे टू डे लाइफ. सो हियर ऑल्सो day to day life experience is given and you are going to share your experience in the situation in this question. Nidhi typed a rhyme on notepad. निधि ने एक नोटपैड पे राइम टाइप किया. शी वॉन्ट्स टू कीप इट इन हर कंप्यूटर फॉर फ्यूचर यूज़. एंड वेन एवर यू डू समथिंग ऑन अ कंप्यूटर, you also want your file or the document which you have made in the computer should be stored for the future use or later use. So here Nidhi has also typed a poem and she wants it to save this in the computer. As she does not know how to store it, she wants your help in it. Help her to store the rhyme. So children, you will tell her how to store something which you have written on a नोटपैड. आप कुछ भी नोटपैड पे लिख करके किस तरह से सेव करते हो, आपको बताया गया है कि किस तरह से. यू विल ओपन द नोटपैड, यू विल ओपन अ न्यू फाइल, देन यू विल राइट समथिंग इन द फाइल, यू विल सेव इट एज सेव एज से आप सेव करोगे. व्हेन यू गिव द कमांड सेव एज, कंप्यूटर विल आस्क फॉर द नेम, यू विल गिव अ नेम और नेम देने के बाद आपकी फाइल सेव हो जाएगी एंड यू कैन सी दैट फाइल इन डॉक्यूमेंट्स में आप देखोगे आपकी फ़ाइल दिखाई देगी. अब बच्चों फिर वापस अगेन इफ़ यू वांट टू ओपन योर फाइल, आप पुरानी फाइल को खोलना चाहते हो तो फाइल जो मेन्यू बार मैंने आपको बताया, सबसे ऊपर वाले बार को हम कहते हैं टाइटल बार. उसके बाद हमारे पास मेन्यू बार होता है. मेन्यू बार में हमें कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं. फाइल दिया होता है, व्यू दिया होता है, एडिट दिया होता है, फॉर्मेट और हेल्प दिया होता है. अब सबसे पहला होता है फाइल. फाइल में हमारे पास ओपन फाइल होता है. ओपन में हम पुरानी फाइल को खोल सकते हैं. न्यू में हम नई फाइल बनाने जब हमको नया फाइल बनाना होता है तो हम न्यू को ओपन करते हैं, न्यू से ओपन करते हैं. और अगर हमें किसी फाइल को एक बार जैसे ओपन किया हमने, ऑलरेडी वी हैव सेव्ड द फाइल, हमने ओपन किया, उसके बाद हमको जो भी चेंजेस वी हैव मेड इन द फाइल, जो भी हम चेंजेस फाइल में करते हैं उसको अगर हमको सेव करना है तो हम सेव पे जाकर के फाइल पे जाकर के सेव प्रेस करते हैं, ऑप्शन चूज़ करते हैं. लेकिन अगर फर्स्ट टाइम हमको किसी भी फाइल को या डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो यू चूज़ सेव एज. सेव एज करने के बाद हमें एक विंडो खुलता है. उसमें दे विल आस्क फॉर द नेम ऑफ द फाइल. पहले वो अनटाइटल्ड फाइल के नाम से होता है, अनटाइटल्ड नोटपैड के नाम से होता है. लेकिन जब हम उसको सेव करने जाते हैं, सेव एज प्रेस करते हैं, तो वो हमसे नाम पूछता है. फिर डॉक्यूमेंट डॉट नोटपैड करके आपको नाम दिखाई देगा. आप टाइटल बार में देख सकते हो. जब तक आपने फाइल को सेव नहीं किया है, till that time your file will be untitled notepad के नाम से होगी. लेकिन once you give a name to the file, it will that name will be shown on the title bar. फिर जब आप उसको वापस खोलोगे तो उसका नाम टाइटल बार पे आपको दिखाई देगा. जो भी नाम आप दोगे वो आपको टाइटल बार पे दिखाई देगा. तो इस तरह से हम किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं, फिर उसको रीयूज़ कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं. क्योंकि नोटपैड इज़ अ प्रोग्राम एडिटर. इसमें हम कभी भी किसी भी फाइल को खोल करके उसमें जो भी चेंजेस करना है हम कर सकते हैं. सो इन दिस वे चिल्ड्रन, हियर निधि टाइप्ड अ राइम. निधि ने राइम को टाइप किया है, बट शी डजंट नो हाउ टू सेव इट सो दैट शी कैन यूज़ इट इन द फ्यूचर या लेटर यूज़ के लिए शी कैन हैव इट. अब बार बार तो कोई पोएम लिखेगा नहीं, तो वो चाहती है कि एक बार वो लिख करके सेव कर दे, ताकि फ्यूचर में इफ़ शी वांट्स टू रीड इट और इफ़ शी वांट टू यूज़ इट एनीवेयर शी कैन यूज़ इट.
बट शी डजंट नो हाउ टू डू दैट। अब आप उसको बताओगे, ये उसने खोल लिया है, लिख लिया है, उसे सिर्फ सेव करना है, तो यू विल टेल हर टू गो टू मेनू बार, वहाँ पे फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेगी। व्हेन शी क्लिक्स ऑन फाइल ऑप्शन इट विल आस्क फॉर सेव, ओपन, न्यू, सेव, सेव एज करके वो पूछेगा। तो वहाँ जा कर के व्हेन शी चूजेस सेव एज, जब वो सेव एज पे क्लिक करेगी एक विंडो खुलेगा। इन दैट विंडो इट विल आस्क फॉर द नेम ऑफ द फाइल। तो आप फाइल का नाम लिखो, टाइप करोगे। टाइप करते ही आपको जो भी आपने नाम दिया है वो विंडो में, डॉक्यूमेंट में, विंडो में आपको सेव दिखाएगा। और फिर उसके बाद नीचे ओके कर दोगे तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप जब वापस आकर के उसको ओपन करोगे, ओपन ऑप्शन में, फाइल से ओपन में आकर के ओपन करोगे तो दैट फाइल विल ओपन एंड द नेम वॉट एवर यू हैव टाइप्ड दैट विल बी शोन ऑन द टाइटल बार। वो फाइल उस नाम से आपको दिखाई देगी, डॉट नोटपैड के नाम से। तो in this way children she can also store her she can also save her rhymes. So here all these things you have learned from the chapter, आपने चैप्टर में पढ़ा है and now you are applying this your knowledge, जो भी आपने knowledge gain किया है from the chapter or from the class, you are applying it in your day to day life. That is why these questions are called application based question. Whatever we have learnt in the chapter or from the chapter we are applying it in our डे टू डे लाइफ। तो यहाँ पे हमने अपने नॉलेज को निधि को बताने में यूज़ किया। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। So children, we have completed book exercise. Now here we have some more exercises under the topic lab activity. अब lab activity में children we have open the notepad and type the following lines. अब यहाँ पे my name is, आप we have learned how to open a notepad. You will open notepad and then after opening the notepad children you will type your name. आप अपना नाम टाइप करोगे। My name is so and so. Suppose my name is Poonam, so I will type my name is Poonam. I am dash years old. You will type your age. Save the text by your name. फिर इसके बाद you will, सबसे पहले तो you will start, your computer is open, you will go to start button, you will click on start button, then you will have a menu. From there you, सबसे नीचे आपको दिखा रहा होगा all program. When you click on all program children, all program के बाद you will get another menu. In that menu children you will search for window accessories. जब आप when you click on window accessories you will get another menu. आपको दूसरा मेनू दिखाई खुलेगा। उस मेनू को खोलने के बाद चिल्ड्रन यू विल विंडो एक्सेसरीज में यू विल सर्च फॉर नोटपैड। नोटपैड खोलने के बाद यू विल क्लिक ऑन नोटपैड। नोटपैड खोलते ही आपको एक विंडो खुलेगा जिसपे ऊपर अनटाइटल्ड नोटपैड दिखाई देगा। अब अनटाइटल्ड नोट के बाद यू आर गोइंग टू मेक अ न्यू फाइल। अब आपको नई फाइल खोलना है। अब नई फाइल खोलने के लिए यू विल गो टू फाइल मेनू। फाइल मेनू में जाके आप क्लिक करोगे, वहाँ से खोलोगे। वैसे विंडो खुला है मतलब आपकी नई फाइल, यू कैन अनटाइटल्ड फाइल खुली है, दैट इज़ अ न्यू वन ओनली। आप वहाँ से लिखोगे, यू विल राइट योर नेम एंड देन यू विल राइट योर एज एंड देन अब लिख लिया आपने। लिखने के बाद यू विल अगेन गो टू फाइल मेनू। फाइल मेनू में आप उसको सेव करोगे, अपना नाम दोगे, टेक्स्ट बाय, आप जो फाइल को टेक्स्ट को सेव करोगे यू विल सेव बाय योर नेम, अपने नाम से सेव करोगे और एंड क्लोज कर दोगे द नोटपैड और उसके बाद नोटपैड को क्लोज कर दोगे। तो वेन एवर यू गो टू द डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट में जाओगे या फिर नोटपैड को खोल करके ही ओपन वाले ऑप्शन में जाओगे तो आपको वो सारे चीज़ें डॉक्यूमेंट में दिखाई देगी और उसके बाद वहाँ से भी आप खोल सकते हो या डायरेक्टली आप डॉक्यूमेंट में जा कर के भी खोल सकते हो। नाउ second question is open the calculator and solve the following. Now you are going to do the same process जो आपने नोटपैड के लिए किया। एसेसरीज में जाने के बाद यू विल दिस टाइम यू विल नॉट क्लिक ऑन नोटपैड। इस बार आप नोटपैड पे क्लिक नहीं करोगे। आप किस पे क्लिक करोगे, मैंने आपको करके भी बताया है। आप इस बार कैलकुलेटर पे क्लिक करोगे। कैलकुलेटर नोटपैड के भी ऊपर होता है तो वो तो और भी जल्दी मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। वहाँ जा कर के आप कैलकुलेटर पे क्लिक करोगे और फिर कैलकुलेटर खुल जाएगा। वहाँ से आप जो कैलकुलेटर के बटन्स में नंबर्स दिए हुए हैं, सबसे पहले यू विल प्रेस ऑन 2। आप 2 पे प्रेस करोगे, फिर प्लस साइन पे प्रेस करोगे, देन यू विल प्रेस ऑन
8 and then you will press on equal to. जैसे ही आप equal to पे press करोगे, जो वहाँ पे ऊपर एक विंडो टाइप है कैलकुलेटर में, जैसे हमारे रियल कैलकुलेटर में होता है, वहाँ पे आपका टोटल नंबर दैट इज़ 8 + 2 10 शो करेगा. दिस इज़ हाउ यू विल डू द सम. एंड नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 9. आपको 5 को 9 से सब्ट्रैक्ट करना है. अब यहाँ पे चिल्ड्रन you will do follow the same procedure. You will first of all you will press 5 from the keypad से 5 प्रेस करोगे and then you will press subtract का साइन माइनस साइन प्रेस करोगे, then you will press 9 and when you do equal to you will get 9 - 5 = 4 will be the answer. And this is how you do these exercises on the notepad. So children, we will try to do it on in the video itself, and till then children, go through the exercises which we have done today, and we will meet once again in our next video. Till then, thank you.